Namaskar. My name is Dr. Karunesh Kumar Singh. I am Assistant Professor in Department of Applied Science and Humanities, IIT Lucknow. In present lecture, I will discuss with you concept of analytic function. As you know that differentiability and several other properties of complex valued function, what here we will discuss with you concept of analytic function. And actually this is the part of course Engineering Mathematics 2 KS 203 in complex analysis for BTech first year. Now let us start. So in present lecture, first we discuss about the neighborhood and open set and domain. Then we discuss with you differentiability at a point, then analytic function, then we will take some examples of analytic function, and finally we discuss with you concept of entire function. So let us consider a point in complex plane. This is suppose Z naught, and if we draw a circle about this point of radius epsilon, then all points lies in this circle is nothing but neighborhood of point Z naught of radius epsilon. So these points actually denotes the neighborhood of a point Z naught in complex plane. And if we exclude this Z naught point, अगर इस point को अगर हम हटा दें तो ये हमारा डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा, जैसा इसमें सेकेंड आपका स्टेटमेंट में सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड सेट में डिफाइन किया गया है. सो दिस इज द deleted neighborhood if we exclude this Z naught point. And what is the need of this deleted neighborhood? Because if we define limit of a function, then this is very important for to find limit of a function at a certain point Z naught. Now concept of a open set. So let us consider a set. This is annular. This is actually annular region of radius, inner radius 1 and outer radius 2. Then this annular region. This annular region is nothing but this is the example of open set. Why? Because we can draw any small neighborhood which is also lies in that set. क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई भी अगर एक नेबरहुड अगर लेते हैं तो वो उसी में लाई करता है, इसीलिए इसको हमने कह दिया ओपन सेट. मतलब हर पॉइंट के अबाउट अगर हम नेबरहुड अगर ड्रॉ करें तो वो उसी में लाई करना चाहिए, तो ये आपका ओपन सेट हो गया. एंड कनेक्टेड सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड सेट? इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट, सपोज दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2, तो इन Z2 और Z1 पॉइंट्स को किसी भी पॉलीगोनल लाइन से अगर हम ज्वाइन कर सकें तो ये आपका कनेक्टेड हो गया. एंड एन ओपन एंड कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोमेन. mod Z greater than 1 and less than 2. So this is the example of domain in complex. Now we will discuss differentiability. So let us consider fz be any complex valued function, and we want to check its differentiability at a point z equal to suppose Z naught. Then simply you find this limit z tends to Z naught fz minus fz naught divided by z minus z naught. If this limit exists, then this function is said to be differentiable at this point Z naught, and value of this limit, this is nothing but this is the derivative of that function at point Z naught, and this is denoted by f dash Z naught.
So from this limit we can find derivative of any function. Now here we are taking some examples of differentiability. Suppose if we take this function z minus suppose z minus 1 and z minus 2. So this is the function, fractional function, and this function is not defined at z equal to 1 and 2. So no question arises about its differentiability. So this function is differentiable only when z is not equal to 1 and z is not equal to 2. तो उसी पर a function आपका differentiable हो जाएगा. Let us take another example, sin 1 by z. So this function is also not defined at z equal to 0, and this is also not defined if we take z equal to 1 upon n pi. तो इस पर भी ये function आपका defined नहीं होगा. So this function is not differentiable at these points, z equal to 0 and z equal to 1 upon n pi. And we can take any value of any integral value of n. मतलब n को आप प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 भी ले सकते हैं. नाउ देर आर सम अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन. सो दैट वन इज सपोज वी टेक मॉड जेड स्क्वायर. इसके बारे में क्या कहेंगे कि ए हमारा डिफरेंशियल है या नहीं है. तो ए फंक्शन हमारा केवल जेड इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल है. कैसे चेक करेंगे इस पर? सिंपली हम लिमिट ले लें. लिमिट मॉड जेड स्क्वायर लिमिट, मान लीजिए ओरिजिन पे हमें चेक करना, जेड टेंस टू 0 मॉड जेड स्क्वायर माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 0. ये हमने लिख लिया इसको जेड माइनस 0. और इसके बाद जेड स्क्वायर कैन बी रिटर्न है जेड वार डिवाइड अपॉन जेड. तो जेड वार आपका कैंसिल हो जाएगी. वी टेक लिमिट जेड टेंस टू 0, देन लिमिट ऑफ this function equal to 0. It means it does not depends on path. So limit exists, and this function is differentiable only at z equal to 0, and this is not differentiable at other points. And second function, suppose if we take z bar, and z bar if we take limit of take z bar at z equal to 0, तो इसका लिमिट लें z टेंस टू 0 z माइनस 0 अपॉन z. तो ये लिमिट लेने के बाद क्या होगा? इफ वी टेक लिमिट अलोंग x एक्सिस अगर लिमिट लेंगे तो z बार को हम क्या लिखेंगे? x माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई. तो इसमें x एक्सिस के अबाउट y 0 होगा. तो इफ y इक्वल टू 0 तो लिमिट हमारी 1 आ जाएगी. एंड इफ वी टेक अलॉन्ग y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारी लिमिट -1 आ जाएगी. इट मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ. सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, एंड दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट अदर पॉइंट्स. दूसरे पॉइंट पे भी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा. अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के हैं. तो सपोज साइन जेड, this function is differentiable everywhere, and as you know that the differentiability of this function and derivative of this function is cosine z, and another function is cosine z, and you know this function is differentiable and derivative of this function is minus sine z. Similarly, you can take exponential function e to power z. This function is also differentiable and derivative of this function is also e to power z. ये आप जानते हैं. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन मान लीजिए हमने ले लिया tan z. दिस कैन बी रिटन एज sin z अपॉन cosine z, एंड एट ऑल पॉइंट्स वेयर दिस cosine z इक्वल टू 0 दिस फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड. उस पर डिफाइंड नहीं होगा. और वो सारे पॉइंट आपके हो जाएंगे z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. n की वैल्यू आप 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ले लेंगे, तो ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा. तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट दीज पॉइंट z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. उस पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा. एंड वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन. एज यू नो दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिग्री की पॉलिनोमियल आपको पता है a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस लास्ट में आपका होता है an z टू पावर n. तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n.
सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। n डिग्री की पॉलिनोमियल को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल आपको मिलेगी। और एक और एग्जांपल है डिफरेंशियबिलिटी का कि फ्रैक्शनल फंक्शन, मान लीजिए एफ जेड अपान जी जेड, ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब हमारा दिस इज द रेशनल फंक्शन, तो जी जेड जब हमारा जीरो नहीं होगा तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल तभी होगा जब जी जेड जीरो ना हो। बाकी सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, जहाँ पे जीरो हो जाएगा वहाँ पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर ये डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। नाउ वी नो द डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी हम जानते हैं। नाउ एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट टू डिफरेंशियबिलिटी इन नेबरहुड ऑफ सम पॉइंट्स। लेट अस टेक ए पॉइंट जेड नॉट, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, इसका नेबरहुड यू कैन टेक स्मॉल नेबरहुड ऑफ जेड नॉट ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। तो ये आपका हो जाएगा, ये मैंने अभी प्रीवियसली आपको स्लाइड में बताया था, दिस इज ये आपका नेबरहुड हो जाएगा। तो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट आल्सो डिफरेंशिएबल इन इट्स नेबरहुड, देन a particular function is said to be analytic at a point z naught। तो वो कहा जाएगा, तो केवल z naught पे डिफरेंशियबिलिटी से काम नहीं चलेगा, अगर फंक्शन पूरे नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि दैट फंक्शन इज एनालिटिक। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या है कि फंक्शन एक कंडीशन है, क्योंकि लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो फंक्शन उस नेबरहुड में, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो उसके नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। तो इट इज ए ओबियस कंडीशन, ये जरूरी कंडीशन है, नहीं तो हम लिमिट नहीं ले पाएंगे अगर डिफाइन नहीं होगा तो। देन ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन ए ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट मान लीजिए हमने ले लिया, एस ले लिया, तो इसमें कब फंक्शन एनालिटिक होगा, इसमें फंक्शन एनालिटिक तब होगा जब इसके हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो। सो वी आर एक्सटेंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी टू ए पॉइंट टू ए नेबरहुड, और नेबरहुड से हम ओपन सेट में चले गए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनालिटिक फंक्शन से, क्योंकि इनकी डिफरेंशियबिलिटी ऑलरेडी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपको बता चुके हैं। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली साइन जेड, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे फंक्शन आपका एनालिटिक ना हो। सिमिलरली सेम थिंग फॉर कोसाइन जेड, this function is also analytic everywhere, and sine hyperbolic function, this function is also analytic everywhere, cosine hyperbolic function ये भी आपका एनालिटिक हर जगह हो जाएगा। यू नो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसाइन जेड, दिस इज माइनस साइन जेड, दिस इज कोसाइन हाइपरबोलिक जेड, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन हाइपरबोलिक जेड। तो ये डेरिवेटिव है, एंड दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। नाउ टेक वेल नोन एग्जाम्पल पी एन जेड, दिस इज ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए एन जेड टू पावर एन। तो दिस इज एक्चुअली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, एंड कंडीशन इज दैट ए नॉट एट लीस्ट वन ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक इसमें ए नॉट एक कम से कम ए आई जीरो ना हो, और आई की वैल्यू जीरो से एन तक ले सकते हैं, तो ए आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी। और दिस इज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ए पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इट मीन्स एनालिटिक एवरीवेयर, तो एनालिटिक एवरीवेयर ए फंक्शन हो जाएगा। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस पी एन जेड, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n is polynomial of degree n minus 1. As you know that degree reduces when we differentiate, reduce होती है। Another example,
cosine function, you can say that this is rational function fz upon gz. तो ए भी आपका कब एनालिटिक होगा? ए एनालिटिक जब होगा जब gz आपका जीरो ना हो, ये आपका डिनोमिनेटर आपका इसमें जीरो ना हो, तो ये आपका फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा. यू कैन टेक अनदर सम एग्जाम्पल्स. मान लीजिए ये हमने ले लिया z-2 अपान z-4 z-6. तो यहाँ पे z-4 z=4 एंड 6 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, और डिफाइंड नहीं रहेगा तो एनालिटिक ये फंक्शन नहीं होगा. उसके बाद fz=z-var, दूसरे जो फंक्शंस आपके हैं fz=z-var. तो इस फंक्शन के बारे में क्या बताया था? इस फंक्शन के बारे में बताया था दिस फंक्शन इज नोवेयर डिफरेंशिएबल. नोवेयर डिफरेंशिएबल, तो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एनालिटिक कैसे हो जाएगा? तो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नोवेयर एनालिटिक फंक्शन, एंड दिस इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर. ये कहीं भी एनालिटिक फंक्शन नहीं है क्योंकि ये कहीं भी डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है. Another example is fz=mod z². तो इस फंक्शन के बारे में हमने बताया था कि ओरिजिन पे ये फंक्शन केवल ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है. लिमिट डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. तो ये ओरिजिन पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया. और किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए है कि उसके नेबरहुड में भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो. तो ये दिस फंक्शन इज एक्चुअली डिफरेंशिएबल ओनली एट 0 origin, not in its neighborhood. So this function is also nowhere analytic. तो ये भी आपका z=z-var and z=mod z². These are the examples of nowhere analytic function. Now next functions are tan z = sin z upon cos z. इसको मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. तो ये आपका एक तरीके से फ्रैक्शनल फंक्शन है, और इसमें आपका जब ये डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा. सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक वेयर कोसाइन z इज नॉट इक्वल टू 0. और कोसाइन z कहाँ पर जीरो होता है ये आपको पता है. z जब हमारा z=2n+1 π/2 ये हमारा हो जाता है. n की वैल्यू आप ले लीजिए 0 ±1 ±2, निगेटिव भी हो सकती है. तो कह सकते हैं कि इंटीजर्स के लिए n इंटीजर्स के लिए तो उस पर ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा. ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं रहेगा. बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा. एंड another example of analytic function, एक एग्जाम्पल और, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, sin 1/sin π/z. तो z की कौन सी वैल्यू लें? फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा. तो इफ वी टेक z = 1/n and you can take n = ±1 ±2 and so on. क्योंकि n = 0 के लिए ऑलरेडी डिफाइन नहीं रहेगा. तो क्या हो जाएगा इसमें? इफ z = 1/n then 1/sin π/z means sin nπ and value of sin nπ is 0. So this function is not defined at these points. These are the infinite number of points at which this function is not differentiable, is not analytic. तो उन पॉइंट्स पर ये फंक्शन नहीं रहेगा. और z = 0 पे भी ये डिफाइन नहीं होगा. तो z = 0 and z = you can say that ±1/n where value of n is 1 2 3, you can say that natural number. तो उस पर ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं रहेगा. तो इन पॉइंट्स के अलावा बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा. उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज fz = एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. fz = 1/z³ -1. तो ये देखिए डिनोमिनेटर आपका 0 कब होगा? व्हेन z³ -1 = 0. इट मीन्स व्हेन z³ = 1.
एंड यू नो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन नथिंग बट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आप जानते हो। तो ये किन किन वैल्यू पर ये डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा? इफ वी टेक z इक्वल टू 1, यू नो द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। तो इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं रहेगा। मीन्स रूट्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड यू नो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने देखा होगा कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज 1 एंड दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसी में कंटेंट है। तो ये आपका फंक्शन एनालिटिक इन पॉइंट्स पे नहीं रहेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर फॉर दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू 0 हो जा रहा। तो डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसके बाद इंटायर फंक्शन। सो ये फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, in other words you can say that a function which is analytic everywhere, analytic everywhere, analytic everywhere. And what is the meaning of everywhere? So you can take in complex plane, this is real axis, this is imaginary axis, x एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रियल एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट हम इमेजनरी एक्सिस ले लेते हैं। और अगर हमारा फंक्शन, इफ़ ए फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, इट मीन्स इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, फाइनाइट इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, फाइनाइट में अगर कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल का मतलब एनालिटिक हो, तो हम उसको कह देंगे दैट फंक्शन इज इंटायर फंक्शन, इंटायर फंक्शन, बिकॉज दिस इज एनालिटिक एवरीवेयर। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटायर फंक्शन, जो सभी जगह पे हमारे एनालिटिक फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस के एग्जांपल्स क्या हैं? तो जैसे कि प्रीवियसली हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि साइन जेड आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, एनालिटिक एवरीवेयर, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटायर फंक्शन। सेम फॉर कोसाइन जेड, सेम फॉर पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, ये मैं आपको बता चुका हूँ, a0 प्लस a1z प्लस an z टू पावर n। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, सो हैंस दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटायर फंक्शन। एंड सेम फॉर साइन हाइपरबोलिक जेड एंड कोसाइन हाइपरबोलिक जेड। तो साइन हाइपरबोलिक जेड और कोसाइन हाइपरबोलिक जेड, ए भी आपके दो एग्जाम्पल हैं इंटायर फंक्शन के, ए भी आपके, बिकॉज साइन हाइपरबोलिक जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप जानते होंगे, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि साइन हाइपरबोलिक जेड की डेफिनेशन ई टू पावर जेड प्लस ई टू पावर माइनस जेड अपॉन 2, सॉरी दिस इज माइनस साइन, तो साइन हाइपरबोलिक जेड आपका हो गया। ऐसे कोसाइन हाइपरबोलिक जेड की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी ई टू पावर जेड माइनस ई टू पावर माइनस जेड, सॉरी दिस इज दिस माइनस एंड एयर प्लस, वी टेक प्लस ई टू पावर जेड प्लस ई टू पावर माइनस जेड अपॉन 2। तो दो अगर फंक्शन है ई टू पावर जेड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटायर फंक्शन एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इंटायर फंक्शन। तो एनालिटिक का सम करेंगे तो हमें इंटायर फंक्शन मिल जाएगा। तो ये भी आपके दो फंक्शन जो हैं ये हमारे एनालिटिक फंक्शन हैं एवरीवेयर, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटायर फंक्शंस। तो ये आपके एग्जांपल हैं, आप लोग कुछ और एग्जांपल सर्च करिएगा इंटायर फंक्शन के। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने आपको जो बताया उसको कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड आपको बताया कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड से हम ओपन सेट आपको बता दिया, कनेक्टेड सेट बता दिया, कनेक्टेड सेट
और ओपन कनेक्टेड सेट अगर कोई भी हो जाता तो वो आपका डोमेन होता इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपने ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में आपने लिमिट का कंसेप्ट, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी जान ली हैं। तो उसके बाद फिर हम डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पर आपको बताए कि एक किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, उससे हम एक्सटेंड उसको की करने के बाद उसको नेबरहुड में ले चले, और नेबरहुड में हमें एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट मिला कि इफ़ ए फंक्शन इज नॉट ओनली डिफरेंशियबल एट पॉइंट Z0 बट आल्सो इन इट्स नेबरहुड, तो वो फंक्शन आपका हो गया एनालिटिक फंक्शन हो गया। नेबरहुड में भी डिफरेंशियबल हो गया तो वो एनालिटिक फंक्शन आपका हो गया। उसके बाद कुछ हमने एग्जांपल्स लिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स कुछ लिए यहाँ पे, जो आपके एनालिटिक फंक्शन हैं या नहीं हैं, जो डिफरेंशियबल फंक्शन हैं या नहीं हैं, तो उनके हमने एग्जांपल्स कुछ लिए। उसके बाद फाइनली हम इंटायर फंक्शन पर पहुँचे, मीन्स ए फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर। एवरीवेयर का मीनिंग मैंने आपको बताया कि इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में फाइनाइट की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात हो रही है, और जनरली आप जानते हैं कि वी टेक रियल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस। ये आप जानते हैं। तो इस फाइनाइट में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाए तो उसको हम कह देंगे, पूरे फाइनाइट प्लेन में हो जाए, इंटायर फंक्शन कह देंगे। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे हम एनालिटिक फंक्शन को लिमिट से चेक किए कि लिमिट के हेल्प से हम कैसे, लिमिट एग्जिस्ट हमारी कर रही है तो हमने कह दिया कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे काची-रीमान इक्वेशन की हेल्प से, बिकॉज काची-रीमान इक्वेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू चेक वेदर ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे काची-रीमान इक्वेशन की हेल्प से कैसे हम चेक करेंगे कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो वो बताएंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।